Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the represent relationships fourth case, that is degree 1 or unary and one-to-one relationship. So it would be like this: there is a unary relationship in which only one entity class participates, that is unary, and the type of relationship is one-to-one, that is one teacher manages only one teacher at the most maximum, and one teacher is being managed by only one teacher maximum. So this is the diagram for unary one-to-one. Now we just try to find out, because we have not seen these kind of relationship much, so we must take or have a look at how the data will look like. So let me give you a real life example. Look, here we have Dr. Irfan, right? So Dr. Irfan is the dean of faculty. So Dr. Irfan is managing Dr. Asim Sahab, and Dr. Asim Sahab is managing Imran Sahab, and Imran Sahab is managing Amir Sahab. And when I try to look at, each teacher is managing only one teacher. Irfan Sahab, only one teacher, that is Asim Sahab. Asim Sahab, only one teacher, that is Imran Sahab. Imran Sahab, only one teacher, that is Amir Sahab. And one teacher is being managed by only one teacher. This Mr. Amir is being managed by only T3, that is Imran Sahab. He is not being managed by other. Otherwise, there would have been more arrows and it would have been one too many. So Amir Sahab is being managed by one, Imran Sahab is being managed by one, and Asim Sahab is being managed by one. So this is the example of one-to-one. One is managing one and one is managing by one. So this is the case. Now the first step is to represent the relationship. So look here, represent the entity classes. So we have represent this teacher entity class like this: teacher ID, teacher name, and designation. And I have put all the data in it. T1 is Dr. Asim, T5 is Dr. Irfan, T3 is Imran, T2 is Amir, and their designation. Now, what will we do? Because in the case of foreign key, we used to take the primary key of one table to the other table. You remember that? Yes, sir. Yes, sir. But here we do not have two tables that I may take the primary key to the other one. So what will I do? Now check what we do. In fact, or you will not draw, I will just show you another diagram for this, but I'm just drawing. So you may know that what I'm doing. We add another column in the same table, because it is unary. And we change the name of this thing, that is teacher ID. It will come over here, but with a different name. So now I will write down manager ID. For example, MID. You may write down MID or manager ID, whatever would be easier. अभी बनाना नहीं, please don't draw that, okay? मैं time दूंगा ताकि सिर्फ समझो अभी. अब देखो जरा. Now let me know. और ये जो sorry ऊपर बनाओ manager ID, और मैं इसको जानबूझकर आपके सामने I want to make it dotted underline so that you must know that this is what? Foreign key. Foreign key, sir. हाँ, शाबाश. अब देखो जरा, who is manager of Dr. Asim? यहाँ से देखो मैंने जान के बनाया. I have drawn that, so you must be able to Dr. visualize. Irfan, T5. So his number is T5, is it so? So now check, I will write down T5. Sorry. T5. Oh. Who is, अब देखो ये उसका सवाल आ गया है. Who is manager of Dr. Irfan? No one, sir. None. No one. So check, मैंने एक लफ्ज बोला था, foreign key can have Empty values. null values, right? So look here, we have null value, right? And Imran को कौन manage कर रहा है? Who is the manager of Imran? Dr. Asim. T1. And who is managing T2 यानी आमिर साहब? Imran. T3. T3. तो अब चेक करो, समझ में आई बात या नहीं?
सिर्फ करते क्या है, इसको यहां से हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं इट मस्ट बी यूनिक, सॉरी, देयर इज वन वैल्यू इफ इट इज देयर, यानी अगर T5 is here, it will not repeat. Because if T5 will repeat for Amir, for example, here somewhere, then you will say that one manager is managing two people, Dr. Asim and Amir, Dr. Asim and Imran. So we say that this column must be unique. If T5 is here, he can only manage one, so it will be once. It will appear once. If T1 is here, it will appear once. If T3 is here, it will appear once. So we have restricted that this column will contain unique value, not the duplicate values. Now let me know, did you get the idea? सर एक क्वेश्चन है हाँ बताओ बेटा। सर इस तरह हो सकता है कि कोई टेबल में कोई राह को एक कॉलम खाली हो, मतलब वो कोई मसला नहीं करेगा, सिर्फ इसी में नहीं कोई और टेबल हो। बिल्कुल हो सकता है, कोई वैल्यू खाली हो सकता है। मेरी बात, हाँ मेरी बात सुनो बेटा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमने एक ऐसी सिचुएशन बनाई है जहां पर हम कह रहे हैं कि कोई एक बंदा एक को मैनेज करता है, और अभी हम क्योंकि एक फैकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं, तो फैकल्टी में जो टॉप लेवल है वो है डीन का, तो डीन से ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, वरना फिर हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, रेक्टर होंगे, लेकिन नहीं, अभी हम क्योंकि फैकल्टी के अंदर देखना चाह रहे हैं, तो देखो हमारे पास इनका मैनेजर कोई नहीं है। और फॉरेन की हमने एक खासियत, देखो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन हमने फॉरेन की का बोला था इट कैन हैव नल वैल्यूज एज वेल एज डुप्लीकेट वैल्यूज। तो देखो बेटा इसकी वैल्यू खाली रह सकती है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, और जहां पर नहीं होगा मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा, पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर। एक्सीलेंट, चलो सो नाउ अब पहले लिखे कोई ना, प्लीज डोंट ड्रॉ, तुम्हें अगर समझ में आ गया देखो मजेदार याद रहेगा। सो इन दिस केस इफ आई हैव एडेड another column as a foreign key, but this foreign key has not gone to other country, other table, so this is known as recursive foreign key. That means a foreign key that resides in the same table and it moves inside the table. If I ask you now, check, इस वाली डायग्राम को भूल जाते हैं थोड़ी सी देर के लिए, हम इसको भूलते हैं। Now let me know कि यार अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि इमरान का मैनेजर कौन है, तो नाम बताओ जरा उसका, यहां से देख के, टेबल से देख के। डॉक्टर आसिम। कैसे पता T1 से सर। T1 से सर, वी टुक T1, वी टुक इट इनसाइड द सेम टेबल, रिकर्जन अपने आप को कॉल कर रहा है, अपने पास जा रहा है, इट वेंट टू द TID and here we found that Dr. Asim is there who is managing Imran, that is T3। so देखो कितना मजेदार हो गया, ये फिर आपस में जुड़ गए, रिलेटेड हो गए। तो पहले बताओ बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो अब मैं काम करता हूँ, तुम लोगों को मैं एक और डायग्राम पे लेके चलता हूँ ताकि तुम लोग अब इत्मीनान से, पहले बल्कि लिखो, सॉरी इसके नीचे जरा लिख लो, डिग्री 1 यूनरी 1-to-1 रिलेशनशिप लिखो। इन दिस केस, यार पढ़ाते हुए तो एनर्जी आ जाती है, थोड़ी देर पहले बेहोश पड़ा था कि नहीं उठा जा रहा, लेकिन ठीक है। इन दिस केस वी insert the primary key of same table, primary key of Sorry, the table in this बोलो बेटा बोलो। In No. this case we सॉरी आपकी आवाज कट रही है। सर वो इन दिस केस के बाद क्या लिखना है? इन दिस केस ये देखो स्क्रीन पर देखो, in this case we insert the primary key of the table in the same table as
फॉरेन की but with different name। और देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं, इस केस में डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखो मेरा बेटा, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर मैं आगे सर तुम्हें तफसील दिखा रहा हूं। बोलो बेटा बोलो। क्या मैं आपको नहीं सुन पा रहा या आप बोल के रुक गए हो? बाकी लोग मुझे सुन सक रहे हैं? सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक। यस सर, नेटवर्क इशू है बेटा। अगर कोई इशू है तो आप मुझे दोबारा से बात करो, मुझे बताओ, या किसी और को बताओ ताकि वो मुझे बताए। ये लिखो बेटा जल्दी से, एंड लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, ताकि जो लड़के इसकी रिकॉर्डिंग देखें उनको थोड़ी सी आसानी मिल जाए कि यार यहाँ से सर ने आज की डेट में शुरू किया। जल्दी से लिखो और मैं इसको तुम्हें ये भी आसानी दे दूं एक और। ये देखो बेटा, कल का बनाने का एक फायदा मुझे हुआ था और ये वाकई अच्छा हो गया। सर क्वेश्चन पूछ रहा था और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं मेरा बेटा, आप पूछो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तुम्हारा तो इशू नहीं है ना, तुम मौजूद हो, दिस इज एक्सीलेंट। क्लास में मौजूद होना और सवाल करना और जायज सवाल करना, क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन जायज सवाल पूछ रहे हो, अच्छी बात है, पूछो। थैंक यू सर। सर ये जो डुप्लीकेशन का बात है, इसका मतलब ये है कि मतलब एक टीचर दो टीचरों पे मतलब मैनेज नहीं हो सकता, मतलब एक टीचर बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, वरना पता है क्या होता बेटा, फिर ये वन टू मैनी हो जाता। तुम ये देखो, फिर तो ये केस ही ना रहता हमारे पास, फिर तो ये वन टू मैनी होता कि एक टीचर दो से मैनेज हो रहा है या एक टीचर दो को मैनेज कर रहा है। तो लिहाजा अभी हमने वो केस नहीं पढ़ा, अभी हम 1 to 1 पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा था कि डुप्लीकेशन अलाउ ना कीजिएगा। तो अब आपने क्या यस बनाना सर। है, सिर्फ ये टेबल बनाना है, सिर्फ ये टेबल, और उसके अंदर ये मैनेजर आईडी डाल दो, तुम्हारा काम खत्म। अच्छा तसव्वुर, मैं एक लफ्ज को क्लियर करना चाह रहा हूँ, तसव्वुर सुन रहे हो? यस सर सुन रहा हूँ। बनाते रहो, सिर्फ सुन रहे। तुमने अभी ना एक लफ्ज बोला कि सर एम्प्टी वैल्यू, बहुत ख्याल रखना बेटा, नल का भी ना एस की वैल्यू होती है, जो हम खाली भी छोड़ते हैं ना, इनफैक्ट उसको भी हम वैल्यू कह रहे होते हैं, तो उसको हम नल वैल्यू कहते हैं। यानी एम्प्टी अगर ये है भी तो ये कोई वैल्यू ही है हम डेटाबेस वाले लोगों के लिए, हम इसको अहमियत देते हैं कि खाली होना भी, राइट। तो इसका ख्याल रखना कि नल को हम नॉर्मली एम्प्टी के बजाय नल कहते हैं, खाली को हम नल कहते हैं। अब ठीक है? यस सर ठीक है सर जी। चलो बस बना लो तो बेटा बताओ, ताकि भागना शुरू करें इंशाल्लाह। अच्छा अब ये पंगे करेगा मेरे साथ। कहां तक पहुंचे? बन गया? यस सर।
यस सर। अब देखो जरा, अब मैं क्या हरकत फरमाने लगा हूँ। अब मैं एक और चीज कर रहा हूँ। सर पहले डेफिनेशन इसकी लिखवा दें। नहीं, डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाता, कि पहले समझाऊंगा। जब मैं गलती करूंगा ना, फिर इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको जरा खोल लूं, ओपन विद पेंट, ये खुल गया। अच्छा, अब देखो मेरा बच्चा, ये एक और केस है। दिस इज यूनरी वन टू मैनी। ये ले आए, और यहाँ पर अब मैंने आपके सामने इसी को चेंज किए, इसके रूल्स, और मैंने कहा यार ये अब इस तरह से काम करेगा। वन टीचर कैन मैनेज मैनी, अभी बनाना नहीं, ठीक है। ये ऊपर वाला बना लो सिर्फ, ताकि तुम्हें पहले मैं जब समझाऊं तो समझ में आ जाए। ये एक बना लो, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय, या टीचर मैनेजेस टीचर, ये आप बना लो। मैनेजेस छोटा लिखा जाता है रिलेशनशिप को, तो मैनेजेस के अंदर आ गया। और ये सिर्फ डायग्राम बनाओ बेटा, बाकी कुछ ना बनाना, ठीक है। आई विल गिव यू टाइम, लेकिन समझने पे जोर लगाओ सारे। सो हियर यू आर। नो 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 नो, वन टीचर मैनेजेस मैनी एंड वन इज बीइंग मैनेज्ड बाय वन, तो ये हो गया वन टू मैनी। ये बनाओ ऊपर वाली डायग्राम, इसको लिख दो नीचे। सर यानी ये टेबल ये बना दूं? टेबल अभी नहीं बनाना, मैं तुम्हें बताऊंगा पहले, फिर बनाना, ठीक है। वन टू मैनी, अभी सिर्फ ये ऊपर वाला छोटा सा बना लो। 1 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में, ये बना लो। पहले मैं पूरा समझा लूं ना, व्हेन आई मेक यू अंडरस्टैंड कि जनाब समझ में आ गया, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टेबल। बन गया बच्चा लोग? यस सर। अब देखो मेरा बेटा, सब बच्चे जरा आंखें खोलें। अभी बनाया नहीं है हमने, आई विल गिव यू टाइम, बट लुक एट दिस। डॉक्टर आसिम, डॉक्टर इरफान, इमरान, Mr. Amir, Dr. Nadeem, Mr. Abid, Mr. Aslam. I have increased the data because I want to show you something else. So now check. Dr. Irfan is managing how many teachers? वन टीचर। डायरेक्ट एरो को देखा करो। मैंने जान के तस्वीर बनाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इस तरह से बुक में नहीं है। तुम इन एरोस को देखो कि एरो कितने बंदों की तरफ जा रहा है, टू हाउ मेनी टीचर्स इट इज पॉइंटिंग। ओनली वन सर। Dr. Asim is managing how many? 2, sir. So now look, one teacher can teach, can manage maximum many teachers, ठीक है। Now Mr. Nadeem, Dr. Nadeem is managing how many people? 2 people sir. Many. मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आता है? So this diagram again is showing me the clear picture what is going on. So one teacher can manage maximum many teachers. Maybe Mr. Nadeem is managing another one. Maybe Dr. Asim is managing another teacher. So one teacher can manage many, but now give me the answer. One teacher is being managed by how many? Sir, only one. One teacher. Only one. देखो, Amir is being managed by Imran. Abid is being managed by Nadeem. Aslam is being managed by Nadeem. Nadeem Saab is being managed by Dr. Asim. Imran is being managed by Dr. Asim. Dr. Asim is being managed by Dr. Irfan. So one teacher is being managed by only one teacher. Sir, one. हाँ, बात समझ में आई? तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने ये डायग्राम से तुम्हें सिर्फ एक सिचुएशन समझा दी कि वन टू मैनी यूं होता है। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, नाउ परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। एक तो ये बनाओ पहले, ये सिचुएशन है, और या फिर लेफ्ट और राइट पे बनाओ, लेकिन बीच में जगह छोड़ना, ठीक है। एंड नाउ ड्रॉ दिस टेबल। यू हैव ओनली 1 minute 30 seconds, ड्रॉ दीज थिंग्स।
सर टेबल और ये बना लें सर दोनों। बिल्कुल बना लीजिए बेटा, आपको समझ में अगर आ गया, क्वेश्चन नहीं है तो जरूर बना लीजिए। अल्लाह अकबर। कहाँ तक पहुंचे बेटा लोग? सर बना रहे हैं अभी। चलो ठीक है, बनाओ मेरा बेटा, बनाओ, शाबाश। कहाँ चले गए तुम? बना लिया अभी कि नहीं? स्लो Yes, हो sir. गए हो लड़कों? अच्छा चलो शाबाश, मैंने कहा स्लो हो गए हो तुम लोग, भागना है। अच्छा देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं यहीं पे लिखता कि एक से नोट्स है, वरना चेंज हो जाएगा सब कुछ। तुम नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। देखो अब इसमें क्या होने वाला है बेटा, इसमें यह है, इन दिस केस वी इंसर्ट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल इन द सेम टेबल एज
foreign key but with different name and duplication is allowed. And duplication is allowed. मेरी बात समझ में आ रही है सर? इसका मतलब क्या हुआ, ये Yes, आप sir. क्या कह रहे हैं? तो जरा देखो, ये देखो जरा, मैं तुम्हें अब इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। इसको भी हम बनाएंगे, पहले समझेंगे फिर बनाएंगे। इसको मैंने ओपन विथ पेंट करना है ताकि तुम्हें पहले इसमें चेंजेस करके दिखा सकूं। ये देखो मेरा बेटा, now this is the solution and here we have duplicate OK, या duplicate OK। सर ये आप क्या कह रहे हैं? यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फॉरेन की को डुप्लीकेट वैल्यूज लेने देना, इसको मत रोकना। क्यों? क्योंकि वन टू मैनी का केस है। तो अब जरा देखो, T1 को कौन मैनेज कर रहा है? T1 को T5। डॉक्टर T5 तो देखो T1 के सामने T5 आ गया। अब मैं तुमसे एक चीज डिफरेंट पूछता हूँ, T3 को कौन मैनेज कर रहा है? T1 सर। T1, ये देखो T1, और T1 कौन है? चेक करो, T1 इज आसिम साहब। मतलब अगर मैं इसको छुपा भी दूं ना तो मैं सब समझ में आएगा। अब जरा ये बताओ कि आबिद को कौन मैनेज कर रहा है? T7 T7। अब ये देखो डॉक्टर नदीम साहब, अब समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज मुख्तलिफ है। एंड देयर इज कि हमारे पास T4 कर दो यार, ताकि नहीं हमारी ये टेंशन ना रहे कि ये क्या चीज थी। 4 T4 इज आबिद और T5 T6। और अब जरा मुझे बताओ कि T6 को कौन मैनेज कर रहा है? डॉक्टर नदीम सर। सर वही T7 नहीं। तो अब तुम देखो, T4 के मैनेजर T7 है, T6 के मैनेजर भी T7 है। जरा नोट करो, डुप्लीकेट की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? यस सर। तो देखो बेटा, इसका सोल्यूशन ये होता है कि वी टेक द प्राइमरी की इन द सेम टेबल एज द फॉरेन की, बट वी अलाउ द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ दिस फॉरेन की। सो दिस इज द सोल्यूशन। अब देखो, अगर मैं एक लम्हे के लिए सिर्फ इतना सा कर लूं कि मैं यहां से इसको छुपा दूं, अभी देखो तुम्हें शोगल नजर आएगा। कंट्रोल X। मुझे ये बताओ कि इस वक्त T2 के मैनेजर का नाम क्या है? T2 का मैनेजर कौन है? जरा ये देखो। सर इमरान। वेरी गुड। T3 है। और जब T3 को यहां पर लेकर आए तो क्या नाम है उस बंदे का? इमरान। अब अगर आपसे मैं कहूं कि यार देखो, तस्वीर के बगैर अब समझ में आ रहा है, तो देखो बिल्कुल आ रहा है। लेकिन तस्वीर क्यों बनाई थी? आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सिचुएशन समझ में आए। मेरी बात समझ में आती है? यस सर। तो अब आप क्या कीजिए, आप सिर्फ सोल्यूशन के तौर पे, सॉरी रीडू करो इसको और कंट्रोल X कर दो। आपने सिर्फ अब ये बनाना है, नीचे जहां पे आपने लिख लिया है ना, कि ये देखो, ये लिखो पहले कि हम इंसर्ट करते हैं प्राइमरी की ऑफ द टेबल इन द सेम टेबल एज फॉरेन की बट विद डिफरेंट नेम एंड डुप्लीकेशन इज अलाउड। ये लिखो। ये है डिग्री 1 और यूनरी, यानी यूनरी और 1 to many का। लिखो जल्दी से मेरा बेटा। सर अब ये नया टेबल बना दें एक नीचे। अब इसके नीचे बताऊंगा क्या बनाना है। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ उठा के ही वही लाऊंगा तुम्हारे लिए। सी, और देखो मैं क्या हरकत करता हूँ, मैं यहाँ से ये लाऊंगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे लाके कंट्रोल V दूंगा। इसको ये बना लो मेरा बच्चा, उस तस्वीर के, इस डेफिनेशन के नीचे ये बना लो कि ये हमने इसका सोल्यूशन बनाया है। और चेक करो यहाँ पे फिर अभी नल है। मैं जान के उस बच्चे को बार बार जवाब दे रहा हूँ ताकि उसका कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। जल्दी से बना लो इसको।
मुनीब, पेशावर में बारिश हुई है? सर मैं तो इस्लामाबाद में हूँ सर। ओए होए, तुम इधर क्यों बैठे हो लड़के? तुम पेशावर में नहीं रहते हो? सर नहीं गए अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा ये बारिशें हों थोड़ी सी तबीयतें सही हों यार, ये नजले और ये खांसी और बुखार। सुन तो रहे हैं कि अभी थोड़ा सा 1-2 दिन, जो कल और आज का दिन थोड़ा सा बारिशें हैं, देखो अल्लाह करे। ठीक है, थोड़ा सा जी हजरात, कहाँ तक पहुंचे? You reached, डन सर। बना लिया सबने? यस सर। बस सर। एक्सीलेंट। अच्छा, अब देखो जरा, इसके बाद मैं एक और केस लेके चलता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डिग्री 1, और अब 1 to many के बजाय ये बन जाएगा मैनी टू मैनी। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप ये हेडिंग दीजिए, देन आई विल शो यू व्हाट इज द केस और व्हाट कैन बी द केस। डिग्री 1 और मैनी। Now check. Hmm, This would be the yes. This was the situation. This was the case. Open with the page. So now this is the diagram. Now it's here से control S, control V, नीचे ले आइए। अब आप ये then this one. बताओ।
many to many. An employee can manage many employees, and an employee can be managed by only the maximum many employees. ये पहले बनाओ. बना रहे हो बेटा? ओ सॉरी, बना रहे हो? ये बन गया? जैसे नो सर, अभी बना था। अब ये वाली सिचुएशन बनाओ जल्दी से, ये वाली कि ये क्या बन रहा है, जरा ये भी बना लो. सर फिर भी बना दें। देखो ना, नीचे वाले को जरा मैं पहले बताऊंगा, ऊपर वाला बन गया ना. जी सर। अब जरा समझना शुरू करो. आमिर साहब T2, आमिर साहब कितने लोगों से मैनेज हो रहे हैं? कोई भी बच्चे जल्दी से शाबाश. T2 को कितने लोग मैनेज कर सर रहे एक। हैं? नहीं, दो कर रहे हैं सर, दो कर रहे हैं, इमरान साहब और डॉक्टर नदीम साहब. तो पता चला कि one person is managing many. Imran is managing two people, Amir Sahab and Abid Sahab. And Amir Sahab is being managed by Imran Sahab as well as Dr. Nadeem Sahab. And if I say that Mr. Nadeem is managing many, two people, and Mr. Abid is being managed by two, Dr. Nadeem and Imran. So this is the situation that we can visualize. हम देख सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि unary many to many कैसा है. So this is the case for unary many to many. Yes or no? यस सर। तो अभी आप बनाओ और इसके बाद इसको नीचे बनाना. But what I'm saying is, एक मिनट रुक जाओ, जरा सा बनाए कोई ना अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ और गेम होने वाली है. अभी इसका मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी ज्यादा. कंट्रोल V और मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और इसको यहाँ से उठा के ये कर लो. ये सीक्वेंस भी बना दिया मैंने तुम्हारा. चलो एक मिनट रुको यार, रुको, मैं तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया हूँ. क्या हुआ है यहाँ पे? अच्छा यही थे, आबिद आखिरी था या कौन था? मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि पता चले जैसे डेटा ही गायब हो चुका है हमारा, और तुम्हारा सीक्वेंस बनाने के चक्कर में पूरी डायग्राम गलत हो गई. इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ. अब बनाओ बच्चों, पहले सिचुएशन बनाओ ये वाला जो विजुअलाइज की जा सके, फिर ये टेबल बनाओ. और टेबल नीचे बनाना है, इसके यहाँ पे जगह छोड़ना. फिर
हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे? बना रहे हैं सर अभी। बनाओ 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 बनाओ। सर ये टीचर की जगह अभी एम्प्लॉय लिखेंगे या ये टीचर ही आएगा? ओ क्या मैंने ऊपर एम्प्लॉय लिख दिया? सॉरी बेटा, ये तो हमने जो चला रहे थे ना वही चलाना है। अच्छा कि तुमने याद करा दिया। असल में तो मैंने एक जगह पे एम्प्लॉय लिखवाया था ना, अभी तो मैं तुम्हें एक ही एग्जाम्पल पे लेके चल रहा हूँ। सो दिस वुड बी टीचर। हम तो टीचर्स की एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। अच्छा किया याद करा दिया। चलो, टीचर मैनेजेस टीचर। ये नहीं बनाना जो मैंने अभी रखा है ला के रेड रेड, इसको मत बनाना। पहले से जरा इसको देख लो। बेटा लोग, बना जो पहले वाला पार्ट है। यानी यहां तक बन गया कि नहीं? लड़कों, बेहोश बेहोश तो नहीं हो गए हो? नो सर। बना लिया? ये सर वो वाला बना दी। अब जरा सारे सुनो, अब सुनो। नाउ चेक। If we make the same decision to bring that primary key in this table as a foreign key, not the primary key like this. Let me make this little bit bold so that it would be like dotted and dotted and dotted. So now check. In this case, T2 has how many managers? This Amir Saab. Check. Two. What are their IDs? T3 और T7। T3 and T7. Now check. T2's manager is T7 and T3. For one record, it is okay. But when I put T7, I need another row. Then I am making a mistake. What is that mistake now? सोचो। डुप्लीकेशन हो गई सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, आपने प्राइमरी की ही डुप्लीकेट कर दी। यानी
आपने तबाही फेर दी है सर हमारे डिजाइन के ऊपर. So that means there can be an issue. Similarly, let me know who is the manager of T4. Check T4. This is T4. Okay, Abid is T4. T4 has the managers. दो है सर इसके टी ये देखो, सेवन वेरी और गुड. T3. T4 का T3 है और T4 का T7 भी है. सर अगेन यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक. सर आप प्राइमरी डुप्लीकेट करना शुरू हो गए. यही हाल T6 का है. असलम साहब के भी T7 T3 है. चेक करो, इज इट द राइट डिसीजन टू मेक दिस टेबल? नो सर. सर गड़बड़ हो चुकी है. इस वक्त आपने एक नया पंगा खड़ा कर दिया है कि सर ये तो सभी कुछ गलत हो गया. मैंने कहा जी बिल्कुल गलत हो गया. दैट मीन्स हेयर देयर मस्ट बी सम अदर सोल्यूशन देयर. दिस फॉरेन की इज नॉट द सोल्यूशन. सो लेट मी डू इट कि मैं इसको दोबारा से करूं. इसको मैं क्रॉप करके 6-1 कर दूं ताकि मैं अगली क्लास से मुझे बनाऊंगा तो खैर फिर भी आदत से मजबूर हूँ. लेकिन चलो एक दिल को वो रहता है कि यार मैंने कुछ इनके साथ नया किया है. चलो अच्छा, अब देखो जरा फिर सोल्यूशन क्या है सर जो आप ये बात कर रहे हैं कि ये सोल्यूशन नहीं है. तो नाउ चेक सोल्यूशन इज कि इस इन दिस केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम लोगों को एक नया टेबल बनाना चाहिए था. क्या मतलब सर? whenever there is many to many in binary, we always make a new table. Yes or no? यस सर. बाइनरी मैनी टू मैनी में नया टेबल बनता था, याद आ रहा है? यस सर. So when there is unary many to many, we make a new table and with the composite primary key. Sir, how do we make that composite primary key? We take the primary key of the same table and the same key with the different name. ये भी टीचर ही है लेकिन इसका नाम मैनेजर आईडी कर दिया. And we make a composite primary key. Yes or no? यस सर. Now check. If I just hide this thing, now let me know who is manager of, who is T6. First of all, let me know who is T6. असलम. Aslam. And who is manager of T6? Check. T6 की ID check करो. T7 and T3. T7 and T3. Very good. Who is T3? इमरान. इमरान. और who is T7? डॉक्टर नदीम साहब. बात समझ में आई? तो चेक करो यहाँ पर. This is the right solution. In this case, in fact, we make a new table. We take the primary key of the table. In that table, we take the primary key with a different name in the same table and we make a composite primary key. और ये हमारा सोल्यूशन है. तो ये बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं? जी सर. तो अब जरा एक लम्हे को रुको और जो मैं भी बात कर रहा था कंट्रोल C और यहाँ से मैं तुम्हें 6 को उठा के दिखाऊं कि अगर ये 6 था, हाँ यही 6 है. ठीक है, तो इसको ओपन विथ कर लेते हैं हम. तो है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तुमने सिर्फ ये बनाना है. ठीक है, see this, write down in this case. और कौन सा केस में बताने लगा? by degree 1 along with many to many. So now in this case, अच्छा मैं लिखूंगी, जगह भी ज्यादा दी हुई है और मैंने उसकी प्रॉपर्टीज में सेट की है. सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज सेट करो. ठीक है, इसको भी अब आप ये प्रॉपर्टीज की सेट कर दो. हो गई. अब जरा देखते हैं क्या कहता है मुझको ये. यार मैंने क्या लिखा था, क्या होना क्या शुरू हो गया है.
क्या हमने कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं था? सब कुछ गलत नहीं हो गया क्या यहाँ पे? ये रहा, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, 5 ये था, 1 टू मैनी, और ये है मैनी टू मैनी। ठीक हो गया, इसको अब आप डिलीट कर दें, ऐसे जरूरत नहीं है इसकी। और ये आपका केस बन रहा है 6, ये 5 बन रहा है, 6 था 5 था, चेक करो जरा मैं क्या गलती कर गया हूँ कॉपी पेस्ट में। सर 6। दिस इज 6, इसको 6 लिखना है यार, ठीक है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं कोई ज्यादा कॉपी पेस्ट कर गया हूँ चीजें जो मुझे लग रहा है अपना। तो इसको नीचे ले आओ और ऊपर वालों को अब आप यहाँ से कम करते जाओ, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये मैं समझ गया हूँ, टाइप ये प्रॉपर्टीज की वजह से मार्क खा रहा हूँ मैं, वरना ये सब ठीक है। सो नाउ दिस वुड बी 6, क्योंकि 5 को मान नहीं रहा, इसको 6 कर लो यार अपने पास, ठीक है? और यहाँ पर अब ये मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। नहीं, कंट्रोल जी, इसको पेस्ट आप नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, मैं समझ गया हूँ। चलो बच्चा लोग, अब इसको आप लिख लो अपने पास। ये 6 है। अच्छा, मैं यहाँ से बार बता रहा हूँ, मेरा एक नंबरिंग कहीं से गलत हो रही है, एक एंटर ज्यादा दबा हुआ है। इन दिस केस वी क्रिएट a new table in which we take the primary key of first table and also the same primary key with different name in new table and make both of them foreign key। ये लिखो मेरा बेटा। माइक ऑफ कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा नॉइज ज्यादा है। चलो अब ठीक हो गया है। मैंने उसमें रखा वही गलत था क्लिपबोर्ड में। ये लो बच्चा लोग, देसी तरीका इस्तेमाल कीजिए ताकि नंबरिंग सही रहे। मैंने कहा चलो यूं तो यूं सही है। किसी एक बच्चे को भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अभी एक सवाल पैदा होता है कि सर अब आप अभी तो आप कह रहे थे कि डीन मस्ट है और उनका कोई अगर ऊपर बॉस नहीं भी है तो सर वो नल होगा, तो यहाँ तो डीन नजर ही नहीं आ रहा है। पहले मुझे बताओ, बात समझ में आती है मेरी? आपको कहीं पे T5 नजर आ रहा है TID में, नए टेबल में? यहाँ पर देखो जरा, ठीक। सरी नंबर तो है ही नहीं। तो देखो बेटा, ये टेबल बनाया ही इसीलिए गया है कि एम्प्लॉय और उसका मैनेजर, एम्प्लॉय और उसका मैनेजर। तो अगर कोई एम्प्लॉय जो है टॉप पोस्ट पर है, यानी फैकल्टी लेवल पे डीन साहब इज ऑन द टॉप पोस्ट,
तो अगर वो टॉप पोस्ट पर है तो उसको फिर हम लोग यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि उनका मैनेजर हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो लिहाजा देखो, अब सवाल का जवाब मिलता है कि अच्छा इसमें पूरा पेयर आएगा, और अगर पेयर ने आना है तो पेयर रिपीट नहीं होगा। चलो, ले लेगा। सर ये हमारे प्रैक्टिकल्स कब करवाएंगे, आई मीन के लैब्स? आज ही होना था, आज ही होना है इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अभी बताया नहीं था, लेकिन आज ही है। क्यों? क्योंकि देखो, आज तुमने फॉरेन कीज मुकम्मल कर ली इंशाल्लाह। भी मैं तुम्हें मैनी टू मैनी, मतलब सॉरी, टर्नरी एंड हायर डिग्री अब इसका बताऊंगा। तो हमारा ये वाला काम भी खत्म हो गया। हमने टेबल्स तो बना लिए थे, लेकिन हमें फॉरेन कीज का पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपनी फॉरेन कीज भी खत्म कर ली। तो आज हम फिर लैब पकड़ेंगे और सब फॉरेन कीज को करके देखेंगे। मैं इसलिए हंस पड़ा हूँ, कहीं मैं बिल्कुल यही सोच रहा था, कहीं मैंने इसके बाद तुम्हें 10 मिनट की ब्रेक देनी है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा से सिर्फ 10 15 20 मिनट, या चलो आधा घंटा का हम वो करेंगे। मैं तुम्हें चंद एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा, फिर तुम भागना शुरू कर दोगे। फॉरेन की तो कुछ भी नहीं है, आसान है। उसी टेबल तो में सर हम जो टर्नरी और हायर डिग्री है वो नेक्स्ट क्लास में या आज ही पढ़ेंगे वो भी? नहीं नहीं, आज ही पढ़ेंगे, बस अब खत्म हो गया। ये तुम्हारा आखिरी है। इसके बाद जो टर्नरी के बाद टर्नरी और हायर सब एक ही सोल्यूशन है। वो बताऊंगा क्या सोल्यूशन होता है। ठीक है सर। मतलब मैंने बना के रखा हुआ है ये। रुक जाओ। अच्छा, ये तो मैं उससे भी आगे रात को निकल गया, उसका मतलब है मैंने वो बना के रखा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ। अभी तो कहानी शुरू हुई है बच्चों। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये सिंपल सा पहले ही ये देखो ये बना रखा है। ठीक है, मैं अभी बस अभी खत्म करता हूँ इसको। तुम लोग ये बना लो बस जल्दी जल्दी से, ताकि ना यहाँ से हम लोग आगे निकलें।
सब बच्चों को डिग्री 1 और डिग्री 2 यानी बाइनरी और यूनरी के 3 केस समझ में आए? यस सर। तो अब ये ख्याल रखो बेटा, सिर्फ ये एक वजह थी जो इतनी सख्ती की हुई थी कि फॉरेन कीज को ब्लाइंडली, अंधाधुंध यहाँ से वहां मत लेकर जाओ, क्योंकि इसके रूल्स हैं। जो ही आप इसको अंधाधुंध लेकर जाते हैं, इनॉमलीज, एरर्स आने शुरू होते हैं। और मैंने आपको वो एरर बार बार दिखाए हैं, मैंने आपको वो एरर शो करवाए हैं, ठीक है? तो लिहाजा अब क्या कीजिए, मैं इसको बंद करता हूँ, नोट सेव कर देते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। और अब जरा अब आप यहाँ पर नीचे लिख लीजिए, इधर 7 है, ठीक है? टर्नरी और हायर डिग्री रिलेशनशिप्स, अगर ये आ जाए तो इसमें 1 to 1, 1 to many का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अंदर हमेशा हम मैनी टू मैनी ही रखते हैं। वजह भी बता दूंगा अभी 1 मिनट के बाद। सिर्फ आप ये हेडिंग दे लो, सिर्फ आप ये हेडिंग दे लो, टर्नरी और हायर डिग्री रिलेशनशिप। अब देखते हैं, पहले तो हम ये देखना चाहेंगे ये होता क्या है, तो जरा इसको अभी आप देख लीजिए। ओपन विद पेंट, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, यहां से हम इसको यूं ले जाएं, वी कर लें, यहाँ पर आ गया, ये ठीक हो गया। और अब देखो टर्नरी, मैंने आपको क्या बताया था, आई टोल्ड यू दैट टर्नरी और हायर डिग्री सेम ही होते हैं। टर्नरी होता है 3 और 4 हो जाए तो हायर डिग्री, 5 हो जाए इनको तो एक ही हायर केस में हमने लेना है। मैं बताऊंगा, ये बनेगा ही एक ही केस। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। सिर्फ मुझे तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करो सारे, ताकि हम ये वाला टाइम बचा लें और तुम्हें याद आ जाएगा मैंने क्या बोला था। ये हो गया टर्नरी, स्टूडेंट, कोर्स, टीचर। ये बना लो जरा। सिर्फ ऊपर वाला बनाना है, ठीक है? नीचे वाला मैं भी एक्सप्लेन करूंगा पहले, फिर बात करेंगे उस पर। बन गया बेटा? अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं एक स्टूडेंट, तुम लोग मैक्सिमम कितने कोर्सेज ले सकते हो, 1 या मैनी? मैं नहीं ले सकते सर। मैं यहाँ पे एहतियातन ना याद रखने के लिए लिखना चाह रहा हूँ मैनी। और एक स्टूडेंट के एक टीचर होगा या कई? मैनी हो सकते। मैनी हो सकते हैं। अच्छा, एक कोर्स एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, एक कोर्स एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा? मैनी को पढ़ा। मैनी को। और एक कोर्स एक ही टीचर पढ़ाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। सर ये भी मैनी होगा। डेटाबेस आप भी पढ़ा रहे हैं, डेटाबेस मिस्टर बी भी पढ़ा रहे हैं, डेटाबेस मिस्टर सी भी पढ़ा रहे हैं। देखो ये हो गया। अब एक टीचर एक ही लड़के को पढ़ाएगा? नो सर। नो सर, मैनी हो गया। एक टीचर को हमेशा एक ही कोर्स पढ़ाना होगा, वो एक ही कोर्स पढ़ाएगा। जैसा मैं इस सेमेस्टर में कई पढ़ा रहा हूँ, डेटाबेस भी और HCI भी 2 पढ़ा रहा हूँ। देखो मुझे नजर आ रहा है जहां से भी घूम रहा हूँ मैनी टू मैनी है। अब देखो तुम आंखें बंद करके बताओ, जब मैनी टू मैनी होता है तो सोल्यूशन क्या होता है? सर न्यू
एक्सेलेंट, जाएंगे। बस बात ही खत्म हो गई सर जी। अगर नया टेबल बनाए, अगर 3 है तब भी, अगर 4 है तब भी। इसीलिए मैंने जब भी तसव्वुर बात कर रहा था कि सर ये टर्नरी और हायर डिग्री एक ही है, मैंने कहा है तो अलग, लेकिन ये ट्रीट एक तरह होते हैं। हम एक नया टेबल बनाए। देखो अब एक टेबल बना स्टूडेंट, ये देखो दिस इज स्टूडेंट, सो दिस इज द टेबल फॉर स्टूडेंट, दिस इज कोर्स, दिस इज द टेबल फॉर कोर्स, दिस इज टीचर, दिस इज टेबल फॉर द टीचर। बट हाउ टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप? So we will make a table of all these 3 primary keys as a composite primary key. Got me or not? Got it, sir. अब एक काम कीजिए, आपने अगर ये बना लिया है तो नीचे खुली जगह के ऊपर अब आप इसकी ये चीज भी बना लें ताकि आपको आसानी हो जाए। और इसके लिए बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, पहले तो मैं इन सबको ना अनडू करना शुरू करूँ। मैंने एम्स डाल दिए समझाने के लिए। इट इज सिंपल, समझ में आ गया। इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल सी, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, कंट्रोल वी, ये तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे तुमने ये ड्रॉ करना है, और मैं बता देता हूँ पहले से ही क्या ड्रॉ करना है ताकि तुम्हें बाद में मसले ना हो। कॉपी, सॉरी ओपन पहले करवा के तुम्हें दिखा दूँ। ओपन विद पेंट, रुक जो बनाने कोई ना, डू नॉट ड्रॉ दैट। ये देखो अब जरा चेक करना, नोट करो मेरे पास यहाँ पे रेज नंबर है। ओहो TID लिख दिया था, ये रेज नंबर है, ठीक है। तो जरा इसको समझो कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक नया टेबल, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू टेबल, और उसको हम लोगों ने तीनों की प्राइमरी कीज देकर और हमने उसको कह दिया कि भाईजान अब जो है आप और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो देखो इसकी प्राइमरी की, the primary key of course and the primary key of teacher ID are here in the new table, and all these are in fact unique. 1242 T3 will not appear anywhere. So now if I say that Imran is taking which course from which teacher, you will say that 1 is taking 242 with teacher T3. So student Imran is taking 242 IDS with teacher Imran Saeed. And the same student Imran 1 is taking 245 with teacher T4. 245 is Java and 245 is Java, and the teacher ID is T4. T4 is Mr. Majid. So now you are getting the information. Getting me or not? So now you can check it. That means BSCS 18 is being taught by Mr. Muhammad Imran Saeed. डेटाबेस मैं पढ़ा रहा हूँ। और अब आप नोट करो BSCS 18 का ही एहसन भी है। लेकिन यार ये एहसन क्यों पढ़ रहा है T1 से इदरीस साहब से? सोचो, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लैश। आपका टाइम टेबल क्लैश आता है तो आप लोग करते हैं ना, किसी और सर के साथ बैठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। यस सर, यस सर। तो मैंने जान के